वीडियो कहाँ से आ गया? Once again, welcome everyone for this webinar, especially on question and answers with Ananya Nakra. I would like to introduce Ananya Nakra first. Ananya is 20 years old now. वो जब 18 महीने की थी तब उसका हियरिंग लॉस डायग्नोस हुआ था और लगभग 1 साल उसने हियरिंग एड पहना. तो 2 years 9 months पे उसका कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ राइट ईयर में, क्योंकि जिस टाइम उसका इम्प्लांट हुआ तब कॉक्लियर इम्प्लांट्स इंडिया में आए ही थे. मतलब शी इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू रेसिपिएंट्स इन इंडिया. तो उसका कॉक्लियर इम्प्लांट का एज 17 years है और अक्टूबर में अब 18 years हो जाएगा. उसका स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल रोहिणी दिल्ली में हुआ और अभी इन दिनों शी लिव्स इन वैंकूवर कनाडा and she is doing her BA in political science and minor in psychology from University of British Columbia. अपने स्कूल टाइम में she has been director MUN. MUN, if you know, is like a mini Ananya will rather explain it what is MUN. And she's been a secretary social initiatives for the year 2017-18. Her hobbies are reading. She is a voracious reader. She loves to do group discussions, especially which are related to politics. And she's learned Bharatnatyam dance for almost 8 years, and she's done her senior diploma in that. So welcome Ananya. We are so happy to see you here. There are so many families who are waiting to hear from you. So welcome to our webinar. Hello, hello everybody. Thank you so much for having me. I'm very honored to be a part of this, and I'm very excited to meet everybody and talk about this. So Ananya, as your profile says MUN, can you tell everyone what is MUN? MUN एक कमिटी की तरह थी. Basically what happened was कि we would act as big countries of the world, like we would act like United States or China or India or even Pakistan, and we would act like these states, and we would talk about the problems that the world is facing, and we would try to solve them. So that was MUN, and I liked it a lot, and it was one of the extracurricular activities I partook in school. Awesome. Thank you so much, Ananya. We are looking forward for having a great conversation with you. So, I'm also very excited to talk to everybody. Yeah. Great. So some of the parents have sent us a few questions and we put them into slides. We would like you to address these questions. Okay. Since our families are super positive families, and that's why the first question, which is also starts on a positive note. Can you please share one situation which you faced in school where being deaf was an advantage? Very interesting. Very interesting question. आपको hearing impaired होने का फायदा क्या हुआ? सबसे पहले मेरे को hearing impaired होना कभी disadvantage नहीं लगा, because I was hearing impaired. मुझे बाकी बच्चों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी. I had to work harder to at my studies. I had to work harder in all my extracurricular activities. If I was part of sports, I had to work harder to make friends, and just because of that, just because of the drive to work harder, क्योंकि मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ी,
मैं जो भी कर पाई वो उस मेहनत के वजह से था, एंड मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ कि मैंने वो मेहनत किया और मेरे पास वो सपोर्ट था। क्योंकि अगर वो सब मेहनत नहीं करती, मैं जितना मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि मैं डेफ थी, मैंने जितना एक्सप्लोर नहीं किया वो मैं कभी कर नहीं पाती। तो मेरे को बहुत बड़ा एडवांटेज लगता है कि क्योंकि मेरे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, इसी की वजह से मैंने और भी बहुत कुछ देखा जो मैं स्कूल लाइफ में नहीं देखती वैसे। So you want to conclude that हियरिंग इम्पेयर्ड होने से आपको ज्यादा ड्राइव मिला मेहनत करने के लिए। तो आपने अगर नहीं होते तो शायद एक रिलैक्स्ड स्टूडेंट की तरह आप भी लीड करते, और क्योंकि चैलेंज को एक्सेप्ट करके आपने ज्यादा मेहनत किया तो इसलिए आपको ज्यादा फायदा हुआ। यस और इसके वजह से मैं बहुत लोगों से भी मिली जिनके बारे में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उनको भी पता लगा कि हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या हुआ। तो वो नेटवर्किंग करना, वो कम्युनिटी का पार्ट बनना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया था, क्योंकि वो सपोर्ट चाहिए होता है। तो अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड ना होती तो मे बी आई वुड हैव नेवर फाउंड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट दैट आई डिड। Excellent. Thank you, Ananya. Yeah. So, coming to question number 2, can you please share one situation which you faced in school where being deaf was a disadvantage? आपने अपनी एडवांटेज तो बता दिया, पर क्या स्कूल लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जहां आपको वाकई लगा कि ये एक डिसएडवांटेज भी है? हियरिंग इम्पेयर्ड होने का, डेफ होने का दोनों साइड होते हैं। कभी कभी एडवांटेजेस होते हैं, कभी डिसएडवांटेजेस होते हैं। वन प्रोमिनेंट डिसएडवांटेज जो मेरे को लगा कि हाँ थोड़ा लाइक क्यों ऐसे हो रहा है, मेरे को फ्रंट सीट्स पे बैठना था, because I was hearing impaired. For the first few years of my school life, I had to sit on the front seats. That is until technology like the mini mic didn't come out. Before that मेरे को आगे फ्रंट सीट्स पे बैठना पड़ा था, एंड मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स पीछे वाले सीट्स पे बैठते थे, और मेरे को आगे क्लासेस के टाइम पे फ्रंट सीट पे बैठना था। तो ऑल्दो मैं टीचर को सुन पाती थी, लेकिन पीछे से मेरे दोस्तों की बातों की आवाजें और हंसने की आवाजें आती थी। तो कभी कभी मेरे को लगता था कि मेरे को भी पीछे वाले सीट्स पे बैठना है, लेकिन आगे जाके मेरे को समझ आया कि फ्रंट सीट्स पे बैठना भी बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि उसी से मेरे को मेहनत करना और क्लासेस का कंटेंट और ये सब समझ आया था। उसके बिना मैं बैक सीट्स पे बैठती तो मे बी शायद मेरे को टीचर इतने अच्छे से समझ नहीं आती। बट शुरू में आई कुड फील अ लिटिल बैड, आई वुड फील अ लिटिल बैड दैट आई हैड टू सिट इन द फ्रंट सीट। ओह, सो बेसिकली आपको शरारतें करने का कम मौका मिला। आई नो, जो गैंग अप होता है वो पीछे वाली सीट्स पे ही होता है, बट ठीक है। आई जस्ट वांट टू टेल पेरेंट्स दैट 17 years बैक जो बेसिक कॉकलियर का प्रोसेसर था वो स्प्रिंट प्रोसेसर था, जो कि अभी जितना आपका मोबाइल फोन है उसके साइज का होता था, और उसको एक बैकपैक में पीछे पॉकेट में डाल के पहनना होता था। तो इट वाज नॉट लाइक कि सब कुछ जो अभी आप बीटी प्रोसेसर देख रहे हैं ऑन द ईयर, वैसा कुछ नहीं था। सो 3 पार्ट होते थे, कान पर भी होता था, पीछे पॉकेट में भी होता था, और कॉइल तो लगती थी। तो इसीलिए उस टाइम पर मिनी माइक जैसी फैसिलिटीज नहीं थी। सो दैट वाज द टाइम व्हेन जब अनन्या को शुरू के कुछ सालों में आगे वाले फ्रंट सीट पे बैठना पड़ता था, and later of course she got upgrades, and currently she is using N6 processor, right? So thank you, Ananya. Next question for you. Okay. Question 3, have you faced any problems in classroom, whether it is listening to teacher or interacting with your friends? I would say I have faced a few problems in the initial years. I had changed schools, so I had gone to a new school in grade 5.
And so for me to introduce myself as a hearing impaired child, I had to brief the teacher and all my classmates about my problem. So it took a little time for both the teacher and the students to adjust to what exactly was my problem. So there would be a problem of interacting whenever the teacher would come in the class. मेरे को टीचर को बताना पड़ता था कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, एंड मेरे को बताना था कि मैं फ्रंट सीट पे बैठी हूँ. कभी कभी अगर मेरे दोस्त बहुत जल्दी बातें कर रहे थे या फिर मैं कॉन्वर्सेशन फॉलो नहीं कर पाती थी, तो मैं उनको बोलती थी कि थोड़ा धीरे बोलो, लाइक मेरे को समझ नहीं आ रहा. तो इनिशियली कुछ टाइम तक मेरे को ये सब इनिशिएटिव्स लेने पड़े थे लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि मेरे को ये है, एंड अकोमोडेशन प्रोवाइड कर लो प्लीज, कि लाइक धीरे बोलो, या टीचर के पास गई हूँ क्लास के बाद पूछने के लिए कि मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, आप मेरे को अलग से समझा सकते हो. तो ये थोड़ी थोड़ी इनिशिएटिव्स लेनी पड़ती थी शुरू में, बट एक बार जब सबको पूरी चीज पता चल गया, everybody was informed about what the situation was, everybody was very quick to accommodate me, and I also got used to the new environment that I was in. So it's always the initial period that is problematic, but after that, once you get used to the situation, it's all good. So the message here will be कि बच्चे में इतने self advocacy skills develop किए जाएं कि वो अपने आप को, अपनी सिचुएशन को बता सके फ्रेंड्स को कि मेरे को ये जरूरत है, आप प्लीज मेरे साथ इसको समझो, या टीचर को जाके. तो उस तरह का कम्युनिकेशन के लिए खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है, राइट? एक क्वेश्चन पूछना था. हाँ शिखा बोलो. रिलेटेड मैम, जैसे अनन्या का वन है, यूनिलेटरल है, लेकिन अब प्रोसेसर में भी काफी चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में भी काफी चेंज आ गया. इट मींस की साउंड क्वालिटी में भी काफी फर्क आ गया होगा. अनन्या पहले यूज करती थी, नाउ अब N7 और कांसो 2. हाँ. मैम शिवांग का जैसे बायलेटरल है, जैसे अनन्या ने ये प्रॉब्लम फेस करी कि मल्टीपल साउंड्स कम समझ में आते हैं या दूर के साउंड कम समझ में आते हैं, तो मैम ये प्रॉब्लम अभी भी प्रेजेंट होएगी? जैसे शिवांग, जिन बच्चों का बायलेटरल है या जिनके पास न्यू टेक्नोलॉजी है, उनको भी फेस प्रॉब्लम करनी पड़ेगी? नहीं, बायलैटरल का सबसे ज्यादा एडवांटेज यही होता है कि बच्चों को राइट साइड और लेफ्ट साइड की साउंड्स के लोकलाइजेशन में हेल्प मिलती है. तो अभी अनन्या आप बताओ, आपको डिफिकल्टी हो? सी यू हैव टू बी ऑनेस्ट अनन्या, बिकॉज आप यूनिलैटरल हो, लेकिन यू हैव टू गाइड एवरीवन सो दैट अगर आपने नहीं करवाया तो क्या दूसरों को आप क्या बोलोगे? व्हाट इज योर ओपिनियन? मेरे को लगता है सबको बायलेटरली इम्प्लांटेड होना चाहिए, बिकॉज जहां तक मैं यूनिलेटरल इम्प्लांटेड हूँ, मेरे को लगता है कि क्योंकि मैंने बहुत मैंने अपने बचपन में कराया था, फिर मैं बड़ी हो गई यूनिलेटरल के साथ, तो मेरे को आदत हो गई एक साइड से सुनने की. तो मेरे को डिफरेंस पता लगता है कि अगर मेरे लेफ्ट साइड से, जहां मैंने इम्प्लांट नहीं लगाया हुआ, मेरे लेफ्ट साइड से कोई आवाज आती है, तो मेरे को अपना पूरा सिर घुमाना पड़ता है उस आवाज को लोकेट करने के लिए. लेकिन बायलेटरल टेक्नोलॉजी के साथ, बायलेटरली इम्प्लांटेड बच्चे को ऑटोमेटिकली पता लोकलाइज हो जाएगा कि लेफ्ट साइड से आवाज आ रही है, और उसको पूरा अपना बॉडी मोड़ना नहीं पड़ेगा वो आवाज लोकेट करने के लिए. तो मैं अगर कहूंगी तो यस, people should go for bilaterally implanted cochlear. That is important because it helps not only outside, like if you're in the market or if you're on a busy road. India वैसे ही बहुत populated country है, तो बहुत आवाजें आती हैं. So it is very good to have the technology that helps you locate and localize sounds. Unilateral होके problem तो होती है left side से, but since मेरे को आदत हो गई है, इसलिए मैं यूनिलेटरली इम्प्लांटेड हूँ, बट अदरवाइज मैं जरूर कहूंगी कि बायलेटरली इम्प्लांटेड होना चाहिए. मैम इट मींस कि 80 to 90% हम नॉर्मल हियरिंग तक आ जाते हैं बायलेटरल से. नॉर्मल हियरिंग तो आप यूनिलैटरल से भी आ जाते हैं, क्योंकि हियरिंग जो ब्रेन का एक एरिया है जिसको हम ऑडिटरी कॉर्टेक्स बोलते हैं, एक साइड से साउंड जाने पे भी प्रोसेसिंग तो शुरू हो जाती है. ये सिर्फ रास्ता अगर दूसरा भी मिल जाए तो जो साउंड का डायरेक्शन है कि दाएं से आया या बाएं से आया, उसको डिस्क्रिमिनेट करने में हेल्प मिलती है. इसका स्पीच क्लैरिटी या ब्रेन में हियरिंग नॉर्मल होना, उससे कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है. ठीक है.
Thank you, Ananya, for sharing your experience with your teachers and your friends. We'll move on to the next question. अब सच बताइए कि स्कूल में फ्रेंड्स बनाना कितना आसान था या कितना मुश्किल था? Very interesting question. I like this question. As a hearing impaired person, it is this part of your life seems very important because you want to make friends. All normal hearing children have friends and they go out and they have fun. So you want to be a part of that. But since you're raised a little differently, you're taught to, adjust to school a little differently, it becomes very important. So for me, because I changed schools also, initially it was a little tough because I had to explain to people कि ओ मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को सबको बताना था और वो उनको खुद कोई आइडिया नहीं था. मेरे से पहले उन्होंने कभी भी किसी डेफ इंसान से नहीं मिले थे वो. तो थोड़ा मैं कहूँगी मुश्किल तो नहीं था बट थोड़ा नया था इन द सेंस कि मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी लोगों से खुद बात करने के लिए कि हाय मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ और लाइक कि क्या कर रहे हो और लाइक मेरे को खुद इनिशिएटिव्स करने पड़े थे. बट जब सब लोगों को पता चला कि ओ मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है और उनको पता चला कि मैं बिल्कुल ही नॉर्मल हूँ, मैं भी उन्हीं की तरह हूँ, बस मेरे को थोड़ा सा सुनाई नहीं देता. बट उनको जब पता लगा कि मैं बिल्कुल उनकी तरह हूँ और उन्होंने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जिनके जवाब मैं उनको दे पाई, तो तब अच्छा हो गया था. एंड मैं एक अच्छा सा फ्रेंड ग्रुप ढूंढ पाई थी स्कूल में. बस थोड़ा टाइम लगता है उसको छोटे लाइक जब मैं छोटी थी तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगा मेरे को कि टाइम लगता है इन सब चीजों में. बट जैसे जैसे बड़ी होती गई क्लासेस आगे बढ़ते गए तब मेरे को समझ आ गया था कि बन जाते हैं दोस्त. इंटरेस्टिंग. तो यानी कि जब आप नर्सरी में थी या प्री केजी या फर्स्ट ग्रेड में, तब आपको लगता है कि आपको फ्रेंड्स बनाने में ज्यादा मुश्किल हुई क्योंकि आपको समझाना थोड़ा मुश्किल लगता था या उन बच्चों को आपको समझना मुश्किल लगता था? उस टाइम मैं कहूंगी कि दूसरे बच्चों को समझने में मुश्किल होती थी क्योंकि वो भी मेरे जितने ही छोटे थे, उनको भी कोई इतनी मेच्योरिटी तो थी नहीं कि वो मेरे को कम्प्लीटली समझ पाए और मेरे में खुद इतनी मेच्योरिटी नहीं थी कि मैं उनको अच्छे से समझाऊं कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है. क्योंकि स्कूल में मैं जब जाती थी मेरे को अभी भी बहुत एक्सपीरियंसेस याद है जब लोग मेरी मशीन देख के मुझसे पूछते थे कि वो आपने कोई ब्लूटूथ डिवाइस पहना हुआ है, आप म्यूजिक सुन रहे हो. उनको कभी कोई आइडिया ही नहीं था कि वो ये सुनने के लिए लगाया हुआ है. तो बहुत सारे छोटे बच्चे आके मेरे से ऐसे पूछते थे दीदी आपने क्या पहना हुआ है. तो सबसे ज्यादा सवाल छोटे बच्चे पूछते हैं और सबसे ज्यादा समझदार तब होते हैं जब सवाल पूछ के जवाब मिलता है, तो फिर समझ आ जाता है कि ओके ये भी बता पा रही है कि इसको क्या प्रॉब्लम है. सो दैट्स हाउ पीपल अंडरस्टूड बिकॉज आई वाज एबल टू टेल देम about myself, what I like to do, what I like to eat, anything normal, any normal topic of conversation. The more you take initiative and start talking, the easier it becomes. आपको कभी कभी ऐसे दुख नहीं लगा कि ये मेरे से आके मेरी मशीन के लिए पूछते हैं? आपको गुस्सा आता था? नहीं, मेरे को अच्छा लगता था जब लोग मुझसे पूछते थे क्योंकि मेरे को हमेशा से मेरी मशीन मेरा एक पार्ट लगता था. मेरे को अच्छा लगता था कि लोग आके पूछ रहे हैं और मैं बता पा रही हूँ क्योंकि मेरे को लगता था कि अवेयरनेस बहुत कम है. तो मेरे को इतनी खुशी होती थी कि मैं उस अवेयरनेस में कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ. एटलीस्ट अगर उनको ना समझ आए, एटलीस्ट मैंने अपना पार्ट करके उनको बताया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैं सुन सकती हूँ और मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हियरिंग बच्चे की तरह हूँ. अनन्या, आपको कब मालूम हुआ कि आपको ये प्रॉब्लम है और आपका फीलिंग क्या था? मुझे अपने बचपन का तो ऐसा कुछ याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे को मशीन हुआ था. बट आई थिंक मुझे सेकंड थर्ड तक फुली रियलाइज हो गया था कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी और कि मैं मशीन पहन रही हूँ और बाकी लोग नहीं पहन पा रहे. एंड आई थिंक तब मैंने मम्मा से पूछा होगा कि मेरे को क्या लगा हुआ है, मैं दूसरे लोगों को क्या बताऊं कि अगर वो मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको क्या बताऊं. तो आई थिंक सेकंड या थर्ड तक मेरे को समझ आ गया था और मैं डिफरेंशिएट कर पाती थी. आपको कुछ ऐसा दुख कुछ हो गया था कि हाँ मैं ऐसी हूँ और मेरे ब्रदर्स वैसे नहीं है?
शुरू में सवाल तो आते हैं कि हाँ ये क्यों हुआ, आप जी, सोचने जी। लग जाते हो कि किस रीजन से हुआ, ये क्यों हुआ। बट एज आई सेड, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको इतनी मेच्योरिटी हो जाती है, तो वो अपने आप समझ जाते हैं कि इसमें कोई दुख की बात नहीं है, ये तो बस है हमारे साथ और ये हमारा पार्ट है, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। तो आई थिंक वो जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपसे, पेरेंट्स से भी बात करने लगेंगे, आपसे बात करने जी, लगेंगे जी। इस चीज के बारे में। ओके, ओके, थैंक यू। पहले एक्सेप्ट करना इज इम्पोर्टेंट वेरी। सो आई थिंक इसमें एक जगह पर एक अच्छा पेरेंट के साथ इंटरेक्शन होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जी, जी अपने मैम। बच्चे के साथ कितना अच्छा कम्युनिकेट करते हो, क्योंकि देखो सवाल और ये इमोशंस तो सब में आएंगी। जी, जी मैम। जब आप एक नॉर्मल पैटर्न से अलग होते हो तो ये सवाल जरूर आता है कि मैं क्यों, मैं कैसे जवाब दूं, मेरे जी, फ्रेंड। जी मैम। तो उस टाइम पे आप अपने बच्चे को क्या गाइड करते हो, किस तरह हाँ, से यस उसको, मैम, वो बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और धीरे धीरे फिर वहीं से कॉन्फिडेंस बनना शुरू होता है। जी, 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 वो सपोर्ट पेरेंट्स भी दे देना चाहिए कि बच्चों को हाँ, इसको एक्सेप्ट करना है और इसके साथ चलना है। तो करेक्ट। मोस्टली जी, 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 जी मैम, थैंक यू मैम। यस। यस प्रकाश दीप। हेलो अनन्या, हाय मैम। हेलो। ये क्वेश्चन बेसिकली मैम के लिए ही है। जैसे अभी बात हो रही थी इनिशियल डेज की, बच्चा जैसे प्रबल है, अभी 3 साल का है, होपफुली नेक्स्ट ईयर से स्कूल जाएगा। तो इस टाइम पे पेरेंट्स का क्या रोल होता है? लाइक बच्चा 4 साल का है, वो बहुत छोटा है, वो अपने हिसाब से बता भी लेगा जो भी है, लाइक मेरी मशीन है, मैं पहनता हूँ, इसे छुओ मत, छोटी मोटी चीज़ें। बट एक पेरेंट इनिशियली जाता है तो वो कुछ ना कुछ टीचर को या प्रिंसिपल को या जो भी केयर टेकर्स है वहाँ पर उनको कुछ गाइड करता है, बताता है। तो करेक्ट। वहाँ पर क्या रोल होता है पेरेंट्स का? उसे क्या बताना चाहिए, किस तरीके से एल्डर्स से डील करना चाहिए, सो दैट वहाँ के टीचर्स फिर बच्चों को अकॉर्डिंगली समझा सकें कि आपको कैसे डील करना है अपने फ्रेंड के साथ। करेक्ट। तो ये हमेशा से ना एक अनन्या के स्कूल ज्वाइन करने से पहले एक मीटिंग में मैं जाती थी, जो उसकी नई, क्योंकि हर साल क्लास टीचर चेंज हो जाती है ना, हाँ, राइट तो मैम। क्लास टीचर से जाके मिलना और उसको बताना कि ये सिचुएशन है। तो उसमें सबसे पहले टीचर का ये सवाल होता है कि आप बताओ हमें बच्चे के साथ क्या करना है। सो द राइट फर्स्ट मैम। थिंग, इज प्लीज ट्रीट हर लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड इन द नॉर्मल क्लास। केयर, यस। कोई एक्स्ट्रा आपको वो सब करने ट्रीटमेंट की एंड ऑल, हाँ। राइट। तो उनको ये बहुत मेंटली पता लगना हम्म। चाहिए कि बच्चा इज जस्ट लाइक एन अदर चाइल्ड, लेकिन क्योंकि उसने डिवाइस पहना है तो डिवाइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी टीचर को इम्पोर्टेंट हो जाती है। कि अभी जैसे यूजुअली छोटे बच्चों में एलईडी ग्रीन लाइट ऑन रहती है अगर बैटरी ऑन है, और ऑरेंज लाइट होती है अगर बैटरी खत्म हो जाती है। तो टीचर को इतना बता दीजिए, अगर आप देखें कि ऑरेंज लाइट हो गई है तो इसका मतलब बच्चा सुन नहीं रहा, उसकी बैटरी चेंज करनी है। तो या तो आप, अगर आप घर के पास, स्कूल के पास है, तो आप मेरे को फोन कर सकते हैं, मैं आके बैटरी बदल दूंगी। या फिर आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने क्योंकि जब स्प्रिंट प्रोसेसर था नर्सरी में, तो उसमें ना 2 A4 सेल डलते थे, जो हम घड़ी में सेल डालते हैं ना, राइट वो राइट। A4 साइज के 2 सेल डलते थे। और बिल्कुल घड़ी में जैसे हम वो एक बॉक्स खोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो हमने टीचर को ना एक स्ट्रिप बैटरीज की वहीं दे दी थी स्कूल में। ओके। तो अभी तो बैटरीज डिफरेंट हो गई हैं जिसको आप हाँ। चार्ज करते हो, पहले ये AA बैटरीज होती थी 2। तो आप इस तरह से टीचर से एडजस्ट कर सकते हो कि बैटरी खत्म हो जाए तो क्या करना है, या ऑरेंज लाइट आपको दिखे तो क्या करना है। बाकी टाइम बेसिकली बात ये है कि मशीन की फिजिकल केयर से रिलेटेड हमें उन्हें जस्ट गाइड करना है। करेक्ट। बाकी कम्युनिकेशन है, बच्चों के साथ मिलना जुलना, फ्रेंड्स बनना, ये सब बच्चे आई थिंक खुद ही हैंडल कर लेते हैं। करेक्ट। और थोड़ा सा टीचर को आपने ये भी बोलना है कि अगर जैसे आपका बच्चा शाय है, उसको बोलने में थोड़ी शर्म आती है, ओके। तो उसका क्लास पार्टिसिपेशन, ग्रुप पार्टिसिपेशन में उसको एनकरेज किया जाए। एनकरेज करना, हाँ, राइट।
जैसे मतलब कोई एक्टिविटी है जिसमें हम्म। 4-5 बच्चों का ग्रुप है, तो आप मैम से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैम प्लीज आप इसको ग्रुप एक्टिविटीज में जरूर लेना। राइट। तो मैंने शुरू शुरू में ये चीजों का ध्यान रखा था, तो धीरे धीरे बच्चे में कॉन्फिडेंस भी आएगा तो और भी वो खुलता जाता है। राइट राइट मैम। हाँ। थैंक यू थैंक यू। एक क्वेश्चन था मैम, ऐसे मैम कोई डिफ्रेंशिएट तो नहीं करती है कि ये बेबी हेयरिंग इम्पेयर्ड है तो उसको थोड़ा सा स्लाइटली कि इस एक्टिविटी में नहीं लेंगे, इससे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ तो नहीं होता स्कूल के अंदर? हाँ, कई टीचर्स करती हैं, यू नो ऑल टीचर्स आर नॉट सेम। क्योंकि टीचर्स करती है, मैंने रियलाइज किया है, मतलब करती वो हैं, नॉर्मल करती हैं। चाइल्ड के साथ इतना कुछ हो जाता है। तो करेक्ट। मैम, तो उनको एक मतलब ये स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं मिल जाएगा कि मैम आपको प्रॉब्लम पता तो है, अब हम एक बच्चे के साथ तो इतनी मेहनत नहीं करेंगे ना, तो मैम इस प्रॉब्लम से मतलब कैसे सॉर्ट आउट? एज अ पेरेंट हमें भी फील होगा एक बार कि भी क्यों। क्योंकि नहीं, उसमें यही है कि आपको यू हैव टू बी रेगुलर इन टच विद द टीचर। टीचर को पता लगते रहना चाहिए कि पेरेंट जो है पूरी नजर रख रहा है, और उसको पेरेंट इज वेल अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास एंड स्कूल एक्टिविटीज। और थोड़ा थोड़ा आप महीने में 1 या 2 बार जाके मिलेंगे, बातचीत कर, अच्छे रिलेशनशिप बना के आप टीचर से कुछ भी करवा सकते हो, यू नो। ट्राई टू बिल्ड इन, जैसे मैं क्लास इनिशिएटिव्स में कई टीचर नहीं आ रहा, एब्सेंट हो रहा है, तो क्लास का कुछ काम देखना, कई कंपटीशन में जाके कुछ सपोर्ट कर देना, यू नो, यू हैव टू जस्ट डू सम एक्स्ट्रा फॉर द स्कूल एंड दे विल लिसन टू यू। थोड़ा सा एक्टिव रहने की जरूरत है, और ये सारा काम सिर्फ शुरू के कुछ साल में करना है। फिर उसके बाद तो बच्चा अपने आप सेटअप हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट। जैसे अनन्या कह रही है कि ऑलमोस्ट सेकंड क्लास में आने तक उसको पता चल गया था कि क्या है, कैसे चीज हैंडल करनी है। आई रिमेम्बर जब थर्ड क्लास में आई थी तो अनन्या ने बोला था, प्लीज यू आर नॉट कमिंग टू माई स्कूल एंड नॉट टॉकिंग टू एनी ऑफ माई टीचर्स। शी गेव मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस, नॉट दिस ईयर, नॉट दिस टाइम। ओके मैम। यू रिमेम्बर दैट अनन्या? I don't remember that, but I do believe you. I would probably have said that. I would have probably said that. Yeah, so she said, I will tell my teacher you don't come. क्योंकि जब मम्मी जाती है तो सारे बच्चे बोलते हैं ना, वो तेरी मम्मी आ गई, देख तेरी मम्मी क्या कर रही है। सो एक टाइम पे बच्चे फिर वो बोलते हैं, मम्मी आप घर पर रहो। ओके, we'll move to the next question. What is your experience while playing outdoors and being involved in co-curricular activities? आपने आउटडोर गेम्स क्या क्या खेली वहां पर? आपको प्लेग्राउंड में स्वेटिंग का या डिवाइस गिरने का, और जैसे आप बॉल के साथ खेल रहे हो, क्या आपका एक्सपीरियंस है? और को करिकुलर एक्टिविटीज का भी थोड़ा सा बताइए प्लीज। प्लेइंग आउटडोर्स के बारे में अगर बात करनी है तो मैं ऑलमोस्ट हर चीज में ट्राई करती थी पार्ट लेने का। मैं अपने स्कूल में जाके मैं अपने पीटी टीचर को जाके बताती थी कि मेरे को मशीन लगा हुआ है, तो जस्ट इन केस कुछ हो जाए, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन है कि मेरे को मशीन लगी हुई है, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशन लेते हैं, वो गेम सुपरवाइज करते हैं। बट वैसे मैं खेलने जाती थी, मैं दूसरे बच्चों को बोलती थी कि बस अगर जैसे हम कैच कैच खेल रहे हैं या कोई बॉल फेंकने वाली गेम होती है, तो मैं बोलती हूँ कि प्लीज अगर मेरे साथ खेल रही हूँ तो फिर मुंह के ऊपर से बॉल नहीं मारना, ताकि मैं मशीन पे बॉल ना लगे कि कुछ हो जाए। और मैं बस लोगों को इन्फॉर्म करती थी कि ये है, थोड़ा ध्यान से खेल लेना। बट नहीं तो फुल पार्टिसिपेशन। स्कूल में अगर बैडमिंटन, मैंने कुछ साल बास्केटबॉल भी खेला स्कूल में, तो बस ये था कि खुद से जाके बोलना था कि थोड़ा कॉशियसली खेलना है, और फिर उसके बाद मैं अपना फुल पार्टिसिपेट करती थी। एंड क्योंकि मैंने अपना अपग्रेड कराया तो ये स्वेट प्रूफ था, और थोड़ा कान, फिर मेरा मशीन कान पे ऑन द ईयर प्रोसेसर हो गया था, तो मेरे को इतनी स्वेटिंग की टेंशन नहीं हुई, और गिरने का भी इतना टेंशन नहीं था, क्योंकि एक पॉइंट के बाद मेरे को अपना प्रोसेसर हैंडल करना आ गया। तो अगर मेरे को लग रहा है कि गिरने वाला है खेलते हुए, तो मैं उसी टाइम रुक जाती थी, मैं साइड में जाके एडजस्ट करती थी, मैं चेक कर लेती कि सब ठीक है, और फिर मैं गेम वापस ज्वाइन कर लेती थी। और डांस वगैरह करते हुए एनी अदर को करिकुलर एक्टिविटी यू वांट टू टॉक अबाउट?
को करिकुलर एक्टिविटीज में मैंने बहुत पार्ट लिया है। मम्मा ने शुरू से ही मेरे को बहुत सारे एक्टिविटीज में डाले थे। I remember from like very young age, I used to go for drawing classes, I used to go for abacus classes. I remember trying out a lot of things because my mom, she made sure कि मेरे पास बहुत सारे options थे और जो मेरे को पसंद आए मैं उसी में invest करके अपनी creativity ऐसे आगे करूँ। स्कूल में भी मैंने टीचर्स को बोला था कि प्लीज अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आया प्लीज मेरे को लेना, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि हमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है एज हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल, कि हमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होता है कि इस चीज पे हम दिखाएं कि हम अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हियरिंग इम्पेयर्ड लोग थोड़े कम मेहनत करेंगे, थोड़े कम स्पेशलाइज कर सकते हैं चीजों में, लेकिन मेहनत करके दिखाया। मैंने हर चीज में इनिशिएटिव लिया। मैंने टीचर्स को जाके बोला मुझे इस एक्टिविटी में पार्ट लेना है। मैंने अपने दोस्तों को बोला कि अगर कुछ खेल रहे हो या फिर किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलता है तो प्लीज मेरे को भी इन्वॉल्व करना। एंड आई थिंक 10th 11th 12th मेरे 9th 10th 11th 12th जो बड़े क्लासेस थे उसमें मैंने MUN किया, मैंने राइटिंग करी स्कूल के मैगजीन के लिए, मैं कॉम्पिटिशन्स के लिए जाती थी, डिबेट कॉम्पिटिशन्स के लिए, पोएट्री कॉम्पिटिशन्स के लिए। मतलब जो भी मिलता था मैं जरूर पार्ट लेती थी, बिकॉज मेरे को पता था कि जितना प्रैक्टिस करूंगी, जितना पार्ट लूंगी, उतनी मेरी प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी। Yes, Padma, you want to ask something? Yes, ma'am. Can you hear me? Yes. Okay. Hi, Ananya. Nice to meet you. So, ma'am, my question is, before the CI surgery, cochlear people told that, these kids should stay away from sports, certain sports. But I've heard Ananya saying she's been playing, basketball and other sports. Are there any potential issues, with participating in some sports, which they suggested to avoid? The only sport which is suggested to avoid is boxing. Other than boxing, you can play any sport. See, as long as nothing hits your head, like a punch or something, because एक magnet का एक surgically एक position set है. So अगर hard punch जैसे boxing होती है तो उसमें probability ये हो जाती है कि थोड़ा सा magnet का alignment shift हो सकता है. But अगर आप देखेंगे ह्यूमन बॉडी में स्कल इज द हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. तो हालांकि वो सारी जर्क्स को सह सकता है, बट the recommended not playing sport is only boxing. Rest you can play anything. I can share videos where children are doing gymnastics. वहिस्ताई मैम का जो बेटा है वो तो इंडिया के लिए बैडमिंटन खेला है, and he is one third, he is one bronze in वर्ल्ड ओवर में जो भी कंपटीशन होता है. सो ही इज रिप्रेजेंटेड इंडिया. बास्केटबॉल बच्चे खेलते हैं, जिम्नास्ट करते हैं, योगा करते हैं, स्केटिंग करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. कोई ऐसी चीज सिर्फ वो जिसमें यहाँ पंच या एक सडन जर्क ना लगे, सिर्फ वो वाली स्पोर्ट को अवॉइड करना है. मैम एक क्वेश्चन पूछना था. कभी कभी हम गुस्से में बच्चे को स्लैप कर देते हैं फेस पे, मतलब हमें ये रोकना पड़ेगा कि हमें. यस, स्लैपिंग ऑन फेस इज नॉट अ गुड आइडिया इन एनी केस. चाहे आपका बच्चा हो हियरिंग इम्पेयर्ड है या नहीं है. हाँ, बम पे मारो ना. ओके मैम, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा मतलब एकदम से फेस ही हाथ में आता है ना, मतलब बैठा होता है ज्यादा कहीं वो मुलायम सफेद फ्लैट सरफेस दिखता है. नेवर हिट ऑन फेस. हाँ, क्योंकि वो आपने बताया ना अलाइनमेंट में हिल सकती है वो अपनी जगह से. मतलब हाँ, कभी देखो अगर आप नॉर्मल आदमी को भी मुंह पे थप्पड़ मारोगे तो एकदम कान झन्ना जाता है ना. वो क्या बोलते हैं, दिन में तारे भी दिख जाते हैं इफ यू हिट समबडी हार्ड ऑन फेस. So that is something which we should do with any person, not even with our child, but okay, ma'am. Okay, Ananya, moving on to next question. I think somebody had a question. Yes, please. Hello, Ananya. Like my question
regarding to the question number 4, sorry, little bit late on this. And my question is to you, like you have said, like you have to meet the class teacher and describe the problem at the beginning of the session. Like my question is there, like what challenge? I don't think every teacher is not same and they are not as cooperative. So what challenges have you faced to convince those teachers, like who are not as careful as you are at home? So what challenges you have faced and how you have handled it? I think I was very regular in interacting with teachers. Like Ananya said, she was the only child in her school initially with such kind of issue. So teachers ने कभी cochlear implant देखा ही नहीं था. So before her joining the school, teachers were made aware कि what is cochlear. एक बार तो मैंने पूरी PowerPoint presentation बना के दी थी. अच्छा. टीचर्स को कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कॉक्लियर इम्प्लांट होता क्या है. तो उसमें प्रॉपर अगर आप देखें कई स्कूल के प्रिंसिपल्स जो हैं, आई वाज वेरी लकी दैट द प्रिंसिपल ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल वाज वेरी कोऑपरेटिव एंड शी सेड प्लीज मेक माय स्टाफ अवेयर अबाउट व्हाट इज कॉक्लियर इम्प्लांट. So I made a PowerPoint presentation telling them कि ये by showing them the picture, showing them the parts, telling them how it works. ऐसे they gave me 30 minutes to make every teacher aware about it. और trust me, ये सिर्फ शुरू के नर्सरी केजी में जरूरत पड़ेगी. क्योंकि सेम टीचर्स अदर क्लासेस में भी रोटेट होते हैं और टीचर टू टीचर वो फिर दूसरी टीचर को बताती जाती है. और ये नर्सरी केजी अपर केजी एंड फर्स्ट 4 years में ज्यादा आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा. देन सेकंड थर्ड ऑनवर्ड्स बच्चे खुद हैंडल करके खुद बताना शुरू कर देते हैं. तो मेक देम मोर अवेयर, गिव देम मोर इंफॉर्मेशन, टेक टाइम, फिक्स अपॉइंटमेंट्स एंड क्रिएट गुड रिलेशनशिप. देखो कभी भी स्कूल को ये नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत उनको प्रेस कर रहे हो या you are being a tough parent. You have to be accommodative parent and you should make yourself that the school needs you. कि जितनी हमें स्कूल को जरूरत है उतनी ही हमारे बच्चे की स्कूल को जरूरत है. Everybody wants a good student in their school. तो जब एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है फिर इंटरेक्शन और कम्युनिकेट करना बहुत अच्छा इजी हो जाता है. Right. Good. So Ananya, next question for you. We've talked about your school life and now you are in Vancouver living in a university hostel. Yeah. You have taken a very big step by deciding to live alone and manage things on your own along with your hearing device. How did you prepare yourself mentally? I from the very starting, बचपन से ही I was taught about my implant, the parts, and most of the time मैं अपने implant की night routine खुद करती थी. सोने से पहले मैं अपने implant को dehydrator humidifier में रखती थी और batteries को overnight charge पे लगाती थी ताकि अगले दिन, और मेरे पास 3 बैटरी है तो 3 दिन के लिए मेरे पास बैटरी होनी चाहिए. तो ये सब प्रैक्टिसेस, ये सब रूटीन मेरे को बचपन से ही सिखाया गया था कि मेरे को ये सब करना जरूरी है. और अगर मैं किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लेती हूँ जहाँ मेरे को लगता है कि डस्ट चला गया है या फिर पानी के ड्रॉपलेट्स गए होंगे, तो मेरे को अपना मशीन डीकंस्ट्रक्ट करना भी सिखाया गया था कि मैग्नेट को निकाल के प्रोसेसर, एक स्पेशल ब्रश आती है तो उससे अगर प्रोसेसर को साफ करनी है या बैटरी को साफ करनी है, तो मेरे को ये सब चीजें बहुत शुरू से ही सिखाई गई थी. तो इसके वजह से मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं कहीं घर छोड़ के जाऊंगी कहीं रहने, या फिर मैं जैसे अभी कॉलेज के लिए मैं फॉरेन आई हुई हूँ, तो मेरे को कैसे संभालना पड़ेगा, तो ये शुरू से ही सिखाया गया था. तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगी.
और अकेले रहने का हाउ डिड यू प्रिपेयर? शुरू में बहुत डर था कि क्योंकि मैं सिर्फ 18 साल की थी जब मैं घर से चली गई थी, और मेरे को लगा था कि क्या होगा, मैं अकेले कैसी रहूंगी। और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मेरे को एक रूममेट के साथ रहना था। तो जब मैं आई, सबसे पहले मम्मी पापा मेरे को कॉलेज छोड़ने आए थे, तो वो भी मेरे रूममेट से मिले थे, और हम सब ने बात करी थी मेरे प्रॉब्लम के बारे में। और मैंने उसको इन्फॉर्म किया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को रात को उतार के सोना पड़ता है, तो अगर कुछ रात को होता है तो वो मैंने उसको बोला था कि आप मेरे को जगा देना, क्योंकि यहाँ पे फायर अलार्म अगर बजता है तो मेरे को सुनाई नहीं देगा। तो आई मेड श्योर कि मेरी अगर रूममेट नहीं थी घर में, तो फिर मैंने अपने नेबर को भी बता दिया था कि अगर कुछ रात को होता है, मैंने अपना दरवाजा खुला रखा हुआ है, कुछ होता है तो फिर आप प्लीज आके मेरे को जगा देना। और अलार्म के लिए मैंने एक वॉच लिया हुआ है जो वाइब्रेट करता है, तो मैं उस पर अलार्म सेट करती हूँ, और सुबह सुबह वो वाइब्रेट होता है, मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे मेरे को टेंशन भी नहीं होती कि वो मैं कुछ सुन नहीं सकती, मैं क्लास के लिए लेट हो जाऊंगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस कर करके मेरे को अकेला रहना भी ठीक हो गया, मेरे को आदत हो गई थोड़े टाइम में। और अब मेरे पास खुद का कमरा है, मैं एक अपार्टमेंट में अपने एक रूममेट के साथ रहती हूँ। अनन्या, आपको इंडियंस में और फॉरेन्स के लोगों के बिहेवियर में कुछ चेंज लगा? जिन बच्चों को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ऐसा कुछ बिहेवियर में चेंज लगा कि इंडियंस कुछ अलग तरीके से मतलब बिहेव करते हैं, या मतलब कौन ज़्यादा कोऑपरेटिव लगा आपको इस फेज के अंदर? देखो, मैं सच बोलूंगी मैं यहाँ सबके साथ सच ही बोलती हूँ, लेकिन जब मैं फॉरेन आई तो बहुत डिफरेंस नोटिस हुआ, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ऑलरेडी पता था कि कॉक्लियर इम्प्लांट क्या होता है। और मैंने जो पहना हुआ था, मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरी नेबर थी इनफैक्ट, तो उसने मेरी मशीन देख के बोला, ओ आई ऑल्सो हैव अ फ्रेंड जो एक कॉक्लियर इम्प्लांट पहनती है, बहुत कूल लगता है मेरे को। तो यहाँ पे लोगों को ऑलरेडी पता है। अभी इनफैक्ट कल मैं ऐसे स्ट्रीट पे वॉक कर रही थी और मेरे को एक छोटा सा बच्चा दिखा, उसने भी कॉक्लियर इम्प्लांट पहना हुआ था। तो यहाँ पे बहुत कॉमन है और बहुत अवेयरनेस है। प्रोफेसर्स हमारे इनफैक्ट कॉलेज में एक डिपार्टमेंट है, अगर आप उनको जाके बोलते हो कि ओ मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम देंगे, आपको कैप्शनिंग देंगे। मतलब अगर प्रोफेसर कुछ बोल रही है, मेरे को समझ नहीं आएगा, तो मेरे को उसके सबटाइटल्स, प्रोफेसर की लेक्चर के सबटाइटल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज, बहुत रिसोर्सेज हैं जो आई विश इंडिया में भी हो, और विद टाइम we can get these in India also, because सबसे बड़ी डिफरेंस तो मेरे को ये लगा कि इन छोटे बच्चों की रिहैबिलिटेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जितने भी क्लिनिक्स और थेरेपी सेंटर्स देखे हैं मैंने, बहुत छोटे छोटे बच्चों को बहुत जल्दी अडाप्ट कराने की कोशिश करते हैं स्कूल लाइफ के अंदर, कॉलेज लाइफ के अंदर, एंड अवेयरनेस बहुत है। तो आई फील लाइक कि इंडिया में अगर ये सब लाएंगे तो बच्चे बहुत बहुत आगे जा पाएंगे। सो आई रियली होप कि इंडिया ऑल्सो स्टार्ट्स adopting these practices. Right. That was a good thought and good discussion. I am thoroughly enjoying doing this. My question, ma'am. Yes, Hasini, you want to ask? Yes. Yeah, actually, like now you are away from home and you must have been attached to an audiologist in India, right, who would map your processors. Now, if you're away, then how do you manage that? If there is a problem in your map, then what is the backup plan that you have? Excellent question. Well done. That's a good question. In fact, something happened to me last year only. In my first year of college, I had a problem with my processor, and actually what happened was that my processor suddenly shut down. It stopped working, and I changed my battery. I did everything I was instructed to do. मैंने battery change किया, मैंने processor साफ किया, मैंने magnet निकाल के देखा कि tight है कि loose हो रहा है, but कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो the first person I called was my mom. मैंने मम्मा को कॉल करके पूछा कि मम्मा मेरे को मैंने मॉम को टेक्स्ट किया, मैं कॉल तो कर नहीं पाई क्योंकि मैं सुन नहीं पा रही थी। तो मैंने मम्मा को टेक्स्ट किया कि मम्मा मेरी एक फ्रेंड है, वो आपसे फोन पे बात करने वाली है, वो आपको सब बताएगी। तो मेरी फ्रेंड ने मम्मा से बात किया और बोला कि ये प्रॉब्लम है। तो फिर मम्मा ने बोला कि आप नियरेस्ट हॉस्पिटल जाओ। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर हॉस्पिटल में एक ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट होती है। तो एज सुन एज मेरी मशीन खराब होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके मैं बोलती हूँ कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, मेरे को कॉक्लियर इम्प्लांट लगा हुआ है।
तो मैंने यहाँ पे अपनी जाके एक ऑडियोलॉजिस्ट सेटअप करवाया और मैंने अपनी मैप इंडिया में जो मेरी सारी इंफॉर्मेशन है कॉकलियर के पास, मैंने सारी फाइल्स ट्रांसफर करवानी। तो उस हॉस्पिटल के पास मेरी सारी फाइल्स हैं और सारा इंफॉर्मेशन है कि अगर मेरे को कोई स्पेयर पार्ट चाहिए या फिर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है। तो आई मेड श्योर कि एक हॉस्पिटल को पता है कि मैंने उनके साथ रजिस्टर किया हुआ है। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मेरे यूनिवर्सिटी या कॉलेज के डिपार्टमेंट में भी एक सेंटर है जहाँ पे ऑल काइंड्स ऑफ चिल्ड्रन हुएवर हैव डिसेबिलिटीज वो वहां पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो यूनिवर्सिटी आपको हेल्प ऑफर करेगी कि आप इस हॉस्पिटल पे जाओ, आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। बट फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कि मैंने मम्मा को कॉल किया, बिकॉज मेरे को था कि मम्मा मेरे पेरेंट्स इन्फॉर्म्ड हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। Then what was done when you went to the hospital? जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने उनसे बात किया, तो क्योंकि मैं बात कर पा रही थी और मैं उनका नहीं सुन पा रही थी तो मैं लिप रीड कर पा रही थी थोड़ी बहुत, जितना मेरे को समझ आ रहा था। बट जितना मेरे को समझ नहीं आया उन्होंने सब लिख के दिखाया मेरे को, पेपर पे लिख के बताया मेरे को कि ये हम समझते हैं आपकी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। एंड देन उन्होंने मेरी सारी फाइल्स ट्रांसफर करवाई इंडिया से, तो उन्होंने मेरी मैपिंग देखी और उन्होंने बोला कि आपके प्रोसेसर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक स्पेयर प्रोसेसर दे देंगे। तो उसी टाइम मेरे को एक स्पेयर प्रोसेसर ला के दिया था। एंड मैंने अपना जो पुराना जो खराब हो गया था प्रोसेसर मैंने उनको दिया था चेक कराने के लिए कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ था। Right. So basically, you were aware that you have to contact which hospital, and you knew that there is an audiology department in that hospital, and the files were with you, and you could transfer them to them, and by taking your friend's help, you went to that place and you were given a backup processor. I always make sure कि कोई मेरे साथ हो जिसको मेरे पूरे प्रॉब्लम के बारे में पता है, जस्ट इन केस मैं कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रही तो वो मेरे तरफ से कम्युनिकेट कर सकती है। उसने मेरे लिए कार, हम लोग कैब में गए तो वो मेरे साथ कैब में बैठ के गई हॉस्पिटल तक, उसने सारा कम्युनिकेट कराया। तो मेरे को बस ये था कि यू शुड ऑलवेज हैव वन पर्सन हु इज इन्फॉर्म्ड। इफ योर पेरेंट्स कैन नॉट, इफ योर पेरेंट्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम यू, एटलीस्ट यू शुड हैव वन पर्सन हु इज देयर विद यू in the same place who can help you. So that's nice that your friend helped you and your friend was aware about the things happening with your device. And I have one question. Ananya, this question is for you. Like, although हमें पता है कि in today's scenario ragging is banned everywhere, but still our seniors do ragging and they call it as हम तो मजाक कर रहे हैं। तो कभी आपको इस रिलेटेड कोई ऐसा मजाक, क्योंकि आप हॉस्टल में रहते हो तो नॉर्मली सीनियर्स करते ही हैं मजाक, एंड यू नो दे डोंट कॉल इट एज रैगिंग बट इट्स अ पार्ट ऑफ मजाक। तो आपको कभी इस रिलेटेड ऐसा फेस किया अपने कि ऐसे आपको मजाक किया गया हो, एंड हाउ डिड यू ओवरकम? मेरे को यहाँ पे आके तो बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि मजाक नहीं करना, या फिर किसी स्पेशली कोई डिसेबल्ड हो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी। ऑलरेडी स्टूडेंट्स को पता है कि अगर मैं उनको बोलूंगी कि देखो मेरे को प्रॉब्लम है तो वो ऑलरेडी मेरे साथ कोई मजाक नहीं करेंगे। बट मेरे को पता है कि इंडिया के कॉलेजेस में एक ट्रेडिशन है कि जब बच्चे कॉलेज जाते हैं तो उनके साथ हंसी मजाक करना थोड़ा वो होता है। तो सब मेरे को शुरू से ही था कि मेरे को उनको बताना है कि देखो मेरे को प्रॉब्लम है और हंसी मजाक चलता है, बट अगर कुछ ऐसे एस्केलेट हो रहा है कुछ अगर मैं उस मजाक के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मेरे को अपना पैर नीचे रख के बोलना होता है कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद व्हाट यू आर डूइंग, आई एम हियरिंग इम्पेयर्ड एंड दिस इज नॉट ओके विद मी। तो थोड़ा टफ बनना पड़ता है, थोड़ा दिखाना पड़ता है कि आप मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते। वो थोड़ा शुरू से जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आपने क्या पहना हुआ है, तो वो शुरू से टफ बनने की आदत लग जाती है बच्चों को। So you knew when to say I'm okay with this kind of joke and I'm not okay with this kind of joke. Yes, because I won't lie, kids are going to experience that. बच्चे जरूर experience करेंगे, वो रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो part of life है। That is something जो हमें we have to go through it and it makes us better people, क्योंकि हमें
पता लग जा, हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपने में, एंड हम लोग खुद से खुश होना सीख जाते हैं इससे। तो आई थिंक कि अपने आप हो जाता है वो, यू लर्न, आप अपने आप सीख जाते हो जब कौन सा मजाक ठीक है और कौन सा मजाक ठीक नहीं, वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है। Right. Thank you so much, Ananya. And coming to the next question, we know that you love reading books. And books have been a very important part of your life. So there are two questions. How do you think you've developed this hobby and how it has helped you? And how will you encourage others to develop this habit of reading in young children? आपको बुक रीडिंग से सबसे पहले फायदा क्या हुआ? मेरे को बुक रीडिंग से सबसे पहले द बिगेस्ट एडवांटेज मेरी वोकैबुलरी, क्योंकि मैं इतनी किताबें पढ़ती थी, मैं इतने इंग्लिश वर्ड्स पिकअप करके उनके मीनिंग ढूंढ के मैंने अपने वोकैबुलरी में इतने सारे वर्ड्स ऐड करे कि मैं लोगों से बहुत आसानी से बात कर पाती थी. Because I read so many books, I found it so easy to talk to people and so easy to, learn the words and meanings and frame sentences. And I think reading is a very important part of a child's education, not only hearing impaired, but normal hearing children also. Reading ke bina, I feel like reading contributes to a very important part of the conversation. अगर हो सकता है, अगर मैं इतनी किताबें नहीं पढ़ती तो मे बी मेरा वोकैबुलरी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मेरी इमेजिनेशन बहुत बढ़ गई उससे. मैं किताबें पढ़ने से ऐसे बहुत सारे सिनारियोज इमेजिन करती थी, और मैं आई यूज्ड टू ट्राई, मैं डिफरेंट चीजें ट्राई करके, और ऐसे क्रिएटिविटी मेरी बहुत बढ़ी क्योंकि मैं किताबें पढ़ती थी. एंड आई थिंक ये हैबिट बहुत जल्दी डेवलप होना चाहिए. मेरे को याद है कि जब मैं छोटी थी, मम्मा मेरे को किताबें लाके, इवन दो अगर जब भी मैं बहुत छोटी थी, अगर वो पिक्चर बुक भी होता था तो वो पिक्चर डिस्क्राइब करने को बोला जाता था कि ओ इस पिक्चर में क्या हो रहा है. तो मेरे को कलर्स और ये सब, मेरी वोकैबुलरी थोड़ी ऐसे बढ़ती गई. एंड मैं बात करती थी कि ओ याद है इस बुक में हमने क्या पढ़ा था. तो नॉट ओनली विद फ्रेंड्स, लेकिन मैं अपने फैमिली के साथ भी अपने एक्टिविटीज के बारे में बात करने लग गई थी कि ओ आज मैंने ये किताब पढ़ा, इसमें मैंने ये सुना, और बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस ऐसे घर में भी बात कर पाई. तो आई फील लाइक कि अगर छोटे बच्चों को बुक रीडिंग इंट्रोड्यूस किया जाए बहुत ही यंग एज पे, आगे जाके बहुत बेनिफिट करेगा. बिकॉज मैं सीबीएसई की बोर्ड से पढ़ी हूँ, एंड बहुत ही रीडिंग इंटेंसिव बोर्ड है. मतलब 11th-12th में भी, क्योंकि मेरे को शुरू से आदत पड़ गई थी पढ़ने की, तो मेरे को कभी ऐसे लगा नहीं कि ओ मेरे को एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए, मेरे को टीचर के पास जाके बैठना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को ऑलरेडी आदत पड़ गई थी पढ़ने की. सो मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि ओ क्योंकि मैं हियरिंग इम्पेयर्ड हूँ, मुझे पढ़ाई में इस चीज में डिसएडवांटेज मिली है. So reading ने बहुत जगहों में help किया. So to conclude, reading books has helped you to develop good vocabulary, develop good imagination skills, and it has improved your, enhanced your creativity of writing also. So you could write well, because you could read well, you could write well. हाँ जी, both things go hand in hand. तो क्योंकि मैं किताबें पढ़ती थी, मेरे को शॉर्ट स्टोरीज लिखने का शौक चढ़ा धीरे धीरे. और क्योंकि स्कूल में, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, कि हर चीज में पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके थ्रू बच्चे को भी पता लगता है कि उसको क्या पसंद है, और फिर वही चीज परस्यू करते 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 उसमें उसकी स्किल बढ़ जाती है. तो क्योंकि मेरे को किताबें पढ़ना पसंद था, मेरे को लिखना पसंद था, तो मैं स्कूल में जाके टीचर को बताती थी कि ओ मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखती हूँ, मेरे को स्कूल के मैगजीन के लिए लिखने दो. तो ऐसे ऐसे मैं सबमिट करती रहती थी. अगर मेरा सिलेक्ट भी नहीं होता था, मैं फिर भी करती रहती थी कि एंड में फिर टीचर्स मेरे को खुद कॉम्पिटिशन्स के लिए बोलते थे, अच्छा तुम पोएट्री कॉम्पिटिशन के लिए जाओ, डिबेट कॉम्पिटिशन के लिए जाओ, कोई बुक रीडिंग कुछ इवेंट होता है. तो धीरे धीरे जब ये इनिशिएटिव लिया जाता है, तो दूसरे लोग खुद देखते हैं कि वो बच्चा इसमें इंटरेस्टेड है, तो वो खुद बोलते हैं कि वो बच्चे को इस चीज में ले लो, इवन दो वो बच्चा या तो हियरिंग इम्पेयर्ड है या नॉर्मल हियरिंग है. अगर इंटरेस्ट दिखता है तो ऑटोमेटिकली सब हो जाता है. So basically, when teachers saw that you are good in reading, you are good in creative writing, you can speak well, then they believed in you and they started giving you opportunities to participate in the competitions, right? Yes. So there is one question from Hardit Bains where she's asked,
Ananya, you have seen both scenarios of India and abroad. Do you think early identification and intervention, which you have said is lacking in India, what methods do you suggest for the government of India? Oh, this is a very good question. Thank you for the question. I think early intervention is lacking in India because firstly it's about awareness. The more जितना awareness होगी उतनी जल्दी बच्चों को थेरेपी और कॉक्लियर इम्प्लांटेशन करवाया जाएगा. और दूसरी बात मैंने नोटिस किया यहाँ पे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होते ही उसकी हियरिंग टेस्ट कराते हैं. तो जब उसकी हियरिंग टेस्ट कराते हैं तो अगर बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड निकलता है तो फिर उसी टाइम फैमिली सोचने लगती है कि वो हमें क्या ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए. इंडिया में पैदा होते ही नहीं पता लगता. मेरा खुद एज मॉम सेड मेरा खुद बहुत टाइम बाद लाइक आई थिंक अ ईयर बाद मेरा पता चला कि ओ मेरे को एक्चुअली सुनाई नहीं देता क्योंकि मैं बोल नहीं रही थी, मैं बैबल भी नहीं कर रही थी, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं जो नॉर्मल हियरिंग बच्चों के होते हैं. तो अगर ये सब जल्दी नहीं पता लगता तो ऑटोमेटिकली उसके बाद जो चीजें स्कूल में और हॉस्टल में जो मैं कर पा रही हूँ वो नहीं हो पाते अगर शुरू से ही वो इंटरवेंशन ना हुआ होता. तो इंडिया में इसकी है बहुत जरूरत और गवर्नमेंट को आई फील लाइक बच्चे के पैदा होने पे ही हियरिंग टेस्ट कराने चाहिए ताकि फैमिली को शुरू में ही पता चले कि ओ ये प्रॉब्लम है और हमें क्या बच्चे को कैसे बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट कैसे दें. Right. So what we need to more tell the government to get into the newborn hearing screening program, identify children at a very young age and make resources. You know, not only identification is important. मैं ऐसे बच्चों को जानती हूँ जिनका जन्म पे हियरिंग लॉस तो डिटेक्ट हो गया था लेकिन लगभग 1 साल तक उनको यही नहीं पता था आगे करना क्या है. You know, so it is not about just knowing that your child has hearing loss, but what kind of right hearing aids, what is the pediatric audiology required to handle that situation is equally important. Right. Thank you, Ananya. So next question. We know that you gave TED Talk in 2018 and it was very inspiring and it was very well appreciated. Can you mention one factor which has given you confidence to be a good speaker? Thank you for the question. I think my confidence mostly came from first of all talking. Like मैं कुछ भी बात करती रहती थी. मैं घर पे भी अगर आप मम्मी से पूछोगे मैं बहुत बातें करती हूँ. मैं किसी भी चीज के बारे में बात करती हूँ. अगर मुझे कोई मूवी पसंद आ गई तो मैं मूवी के बारे में बात करती थी. एंड मेरे को लगता था कि घर पे सब सुनते थे ऑल्दो अगर वो बोर हो रहे होंगे लेकिन वो जरूर सुनते थे और जरूर जवाब वापस देते थे. तो आई थिंक घर से ही जो शुरू हुआ था ये बातें करने का. ये स्कूल में भी शुरू हुआ. मैं आपस दोस्तों में बात करती थी. मैं टीचर से जाके अगर ब्रेक चल रहा होता था मैं टीचर से जाके बात करती थी कि वो क्लास में ये सीखा, मेरे को ये नहीं समझ आया, ये समझा दो. तो आई थिंक ऐसे प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंट लाइक पब्लिक स्पीकिंग में मम्मा मेरे को बोलती थी कि ओ मेरे को ये पैराग्राफ पढ़ाओ. तो ऐसे पूरे फैमिली के सामने खड़े होके मैं पैराग्राफ पढ़ती थी बुक में से. तो ऐसे प्रैक्टिस करते 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 पब्लिक स्पीकिंग की आदत लग के आई थिंक कि व्हेन आई गेव माय टेड टॉक आई ऑलरेडी हैड द कॉन्फिडेंस कि आई कैन टॉक इन फ्रंट ऑफ पीपल बिकॉज शुरू से ये करते 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 आदत पड़ जाती है. एंड I enjoyed giving the TED Talk and TED Talk के बाद लोग आके मुझसे पूछ रहे थे कि ओ ये प्रॉब्लम है, ये आपने कैसे क्या किया, स्कूल लाइफ कैसी थी आपकी. सो उसमें भी मैं बहुत बातें कर रही थी लोगों से और उनसे मिलके अच्छा लगा. तो बस प्रैक्टिस करने से ही होता है. Lovely. So which means when you initially started talking, you got equal response from the family side. They also interacted and encouraged you to speak. They gave you different scenarios to talk about, like you are saying, describe a picture, describe a scene, talk about birthday party, talk about movie. So you were facilitated with different scenarios to talk, and when you were talking, you got positive feedback on your talking, and that encouraged you to talk more and more.
यस, मेरे को याद है कि किचन में अगर मैं कभी जाती थी तो मम्मा कुछ बना रही होती थी तो मम्मा मेरे को स्लैब पे बिठाती थी। एंड इनफैक्ट मैं कभी कभी, अब मैं 1 साल होने वाला है, मैं घर नहीं गई, बट जब मैं कॉलेज से वापस आई थी तो मैं साइड में मम्मी की हेल्प कर रही थी किचन में, एंड हम बातें कर रहे थे कि क्या हो रहा है, क्लासेस कैसे चल रही हैं। तो वो डेली रूटीन एक्टिविटीज में भी जितना बात किया है, और मम्मा भी आगे बात कर रही थी, तो मेरे को लगा कि हाँ, कॉन्वर्सेशन करना इजी है। वैसे ही बाहर जाके मैं अपने दोस्तों से बात करती थी, अनजान लोगों से भी जाके बात कर पाती थी मैं, क्योंकि मेरे को लगता था कि अगर मैं घर से ही कॉन्वर्सेशन कर सकती हूँ, दोस्तों के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकती हूँ, तो मैं एक अनजान बंदे के साथ क्यों नहीं कर सकती। Lovely. So now it's music time. I know you told me that you don't want to sing, but Pallavi has asked you a question. Oh, okay. She's asked, was listening to music difficult? And since you are trained in as a classical dancer, do you think you faced issues while listening to the classical music and the beats and the rhythms? What is your experience for music? मैंने भरतनाट्यम कुछ लगभग 8 से 10 साल सीखा है, और मैंने जब भरतनाट्यम सीखना स्टार्ट किया था, आई थिंक मैं 5 साल की थी। तो उस टाइम पे मैंने खुद सीखना शुरू किया था कि ओ मेरे को इसमें प्रॉब्लम होती है सुनने में। मैं खुद साउंड्स डिफरेंशिएट करने लग गई थी कि ओ मेरे को लेफ्ट साइड से अगर सुनाई नहीं दे रहा तो फिर मेरे को लोकलाइज कैसे करना है। वो सारी ट्रेनिंग मेरी शुरू हो चुकी थी। तो जब मैं म्यूजिक सुनती थी तो मैं ज्यादा बीट्स पे फोकस करने की जगह मैं बस म्यूजिक सुनने के लिए सुनती थी। और जब मैं भरतनाट्यम क्लासेस के लिए जाती थी, मेरे को अभी भी याद है, मेरे जो सर थे वो मेरे को बीट से सिखाते थे। तो वो बोलते थे 1 2 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4 5 के बीट्स में मेरे को बीट से सिखाते थे, म्यूजिक से नहीं, मेरे को बीट से सिखाते थे। और फिर धीरे धीरे क्लासेस में मैं बीट्स को म्यूजिक के साथ मैच करने लग गई। और ऐसे मैंने भरतनाट्यम की क्लासिकल म्यूजिक उनकी प्योर संस्कृत में और ऐसे पुराने उर्दू में ऐसे लैंग्वेजेस में म्यूजिक बनी थी। तो मैं बीट से एसोसिएट करके म्यूजिक को ऐसे एसोसिएट करके मैं धीरे धीरे वो म्यूजिक भी सीखने लग गई। ऑल्दो मेरे को वर्ड्स भी समझ नहीं आते थे कभी कभी, लेकिन क्योंकि मेरे को बीट से सिखाया गया था तो मेरे को म्यूजिक पे भी डांस करना आ गया था धीरे धीरे। एंड अब आके आई लव म्यूजिक, लाइक रोज मेरे फोन पे गाने चल रहे होते हैं और मैं म्यूजिक सुनती हूँ। म्यूजिक के बिना दिन नहीं बनता मेरा अब इस पॉइंट पे, क्योंकि So what kind of music do you listen to? I listen to mostly English songs because मेरा फर्स्ट लैंग्वेज टेक्निकली इंग्लिश है, क्योंकि मेरे को इंग्लिश ज्यादा जल्दी अडेप्ट हो गई थी मैं इंग्लिश से। बट कभी कभी मेरे दोस्त अगर हिंदी मूवी की बात कर रहे होते हैं तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि ओ मेरे को अगर मेरे को किसी वर्ड का, अभी भी मैं सीख रही हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अभी भी मैं भी सीख रही हूँ दोनों लैंग्वेजेस में। अगर मेरे को कुछ समझ नहीं आता तो मैं जरूर गूगल पे सर्च करती हूँ। मतलब तो अगर मेरे को कोई हिंदी गाना अच्छा लगता है तो मैं ये नहीं करती कि वो मैं हियरिंग इम्पेयर्ड हूँ, मेरे को समझ नहीं आएगा, तो मैं बीट्स भी नहीं छोड़ती, मैं बस गाना सुनने के लिए सुन लेती हूँ। मैं अपने ऊपर वो ये नहीं रखती कि वो मेरे को म्यूजिक समझ नहीं आएगा। वो शुरू में था कि वो कि मेरे को म्यूजिक समझ नहीं आ रहा, बट धीरे धीरे वो एंजॉय करने के लिए फिर सुनती हूँ मैं। So basically the whole answer to this is that you have to stimulate a child's brain with the music. We don't have, हमें ये नहीं सोचना कि ये hearing impaired है तो शायद music appreciate नहीं करेगा। It is the environment you create for music. बच्चे को कितना आप म्यूजिक का एक्सपीरियंस दे रहे हो, उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाएगा। So let's not think कि music is some kind of restriction that our children cannot adapt to. But if we create that environment. मैम लेकिन अगर म्यूजिक चलाते हैं छोटे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, शिवांग बहुत एंजॉय करता है, मतलब उसको म्यूजिक चलाते लगता है कि फटाफट वो लगाता है, मुड्डे लगाता है कि म्यूजिकल चेयर खेलो मेरे साथ। तो कितनी रिदम समझ में आ रही है, मतलब एक थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है या बस उसको पता चल रहा है कि ट्यून्स बज रही है? देखो उनको सबसे पहले रिदम आता है, रेट रिदम ये सब आएगा। अब उसके लिरिक्स समझने में मुश्किल हो सकती है, बट जो म्यूजिक एज इन जो रिदम है उसका, जो गाने का एक
पैटर्न होता है, इंटोनेशन पैटर्न, सुप्रा सेगमेंटल, वो सब बच्चों को आराम से सुनाई देते हैं। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसीलिए अब उतनी मुश्किल नहीं होती है। कुछ हद तक थोड़ा बहुत अप डाउन है, इतना नहीं है कि इसको पता ही नहीं चल रहा है कि रिदम्स पकड़ सकता है, वो रिदम वो ले रहा है वो। Ananya, there is another interesting question from you, for you from Mr. Nikhil. He's asked that, hi Ananya, as you know the situation of COVID in India, so there is any suggestion to parents for speech therapy? Like, I think he wants to say that they are not able to go to a therapy center on regular basis. So do you suggest any daily routine activities or things which can help develop speech? Thank you for the question, first of all. I think for speech therapy the most important thing is stimulation. मतलब कि बच्चे को टॉपिक मिलता रहना चाहिए, just to talk, उसको बस चांस मिलनी चाहिए कि उसके जो मन में आ रहा है वो बात करे। क्योंकि जब बच्चा बात करने लगता है, अगर वो गलत भी बात कर रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको करेक्ट करने का, उसका ग्रामर सही करने का, तो ऑटोमेटिकली वो स्पीच उसकी भी फाइन ट्यून होती रहती है साथ साथ डेली रूटीन एक्टिविटीज में। जैसे मेरे को याद है जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे को बहुत विविड सपने आते थे, तो मैं जब भी उठती थी तो मम्मा मुझसे पूछती थी कि ओ आपको कल रात को कोई सपना आया? तो मैं बोलती थी हाँ जी, तो फिर मम्मा बोलती थी अच्छा बताओ क्या सपना है? तो मैं अपना सपना सुनाने लग जाती थी मम्मा को कि ओ मेरे सपने में मैं ये कर रही थी, मैं ये कर रही थी। तो वो एक्शन वर्ड्स, फिर मेरे को पता था कि अगर मैं कुछ डिस्क्राइब नहीं कर पा रही तो मम्मा मेरे को उसके लिए वर्ड बताती थी, फिर हम दोनों बैठ के उस वर्ड का मीनिंग ढूंढते थे, और फिर मम्मा मेरे को उस वर्ड के मीनिंग कहाँ यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल देती थी। एंड बहुत सारे पिक्चर कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स, इन सब से बच्चों के साथ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज से बच्चा खुद इंटरेस्ट लेगा बात करने में, खुद आपके पास आके बताएगा कि ओ आज ये हुआ या मैं ये सोच रहा हूँ। तो once you start giving those opportunities to children, वो अपने आप इनिशिएटिव लेते हैं, क्योंकि बच्चे वैसे ही बाय नेचर बहुत टॉकेटिव होते हैं। तो अगर उनको जैसे जैसे चांसेस देते रहोगे तो वो वैसे बात करते रहेंगे। एनीथिंग दे कैन बी आस्क्ड टू डिस्क्राइब एनीथिंग, वो अपने आप बात करने लग जाएंगे। उसमें भी ग्रामर सही करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बच्चों से और क्रॉस क्वेश्चन करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं आजकल ऑनलाइन, तो उससे भी कुछ टॉपिक्स और आइडियाज और फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश बुक्स, ऑडियो बुक्स, बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन भी मिलते हैं। तो इवन दो सिचुएशन बहुत बुरा है, आई होप एवरीबॉडी इज सेफ इन इंडिया, बट स्पीच थेरेपी तो घर से ही शुरू होती है, घर से ही कंटिन्यू हो सकती है। Awesome. So you want to say that we need to create opportunities where children are interested of talking. मतलब हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज घर में क्रिएट करनी है जिसमें बच्चे को मजा आए और वो उसके बारे में बात करना चाहे, और जब वो बात करे तो आप उसको सही लैंग्वेज, उसका लैंग्वेज एक्सपेंशन पे काम करें। अगर कुछ नया वर्ड ऐड हो सकता है उस कॉन्वर्सेशन में तो वोकैबुलरी डेवलप हो, तो उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू हम स्पीच और लैंग्वेज दोनों को डेवलप करें। Yes. Awesome. Thank you, Ananya. And now coming to the last question of today's session, do you want to give any takeaway message to all the families who are working with their young children, or who've just started, or who are still in that process? I would like to say have faith, क्योंकि जब ये न्यूज पहले पता चलता है, आज मैंने जैसे बड़ी होती गई मैंने मम्मा से पूछा कि जब आपको पता चला कि मैं सुन नहीं सकती, आपका क्या रिएक्शन था, आपको कैसे लगा? तो इनिशियली बहुत ही इमोशनल प्रोसेस होता है, बहुत ही इमोशनल जर्नी होता है, और कभी कभी लगता है, कुछ पॉइंट्स आते हैं कि आपको लगता है कि ओ मेरे बच्चे को कितनी मुश्किल हो रही है, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। बट हमें खुद इतना बुरा नहीं लगता, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे वो इतना ग्रेटफुल होंगे इस चीज के लिए, एंड पूरा आपको इतना अप्रिशिएट करेंगे। मैं घर से इतनी दूर आई हुई हूँ, मैं कॉलेज आई हुई हूँ, मैं रोज अपने पेरेंट्स को बोलती हूँ कि थैंक यू, आपने मेरी बचपन में मेरे को इतना मेहनत डाला मेरे को बड़ा करने में, मेरे को एक नॉर्मल हियरिंग बच्चे की तरह डालने में। तो आपके बच्चे भी आगे जाके आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, जितना भी एफर्ट डाला है बहुत अप्रिशिएट करेंगे।
आप अपने बच्चे के बेसिकली भगवान हो और ये सब ठीक हो जाएगा, लाइक वॉट एवर प्रॉब्लम्स आजकल, बल्कि इन बच्चों के पास जो आज इस टेक्नोलॉजी में बड़े हो रहे हैं, उनके पास इतनी रिसोर्सेज है, इतना सपोर्ट है, इतना टेक्नोलॉजी है। मेरे टाइम में तो इतना था नहीं, कॉक्लियर इम्प्लांट भी इतना नया था। तो मेरे को इतनी खुशी होती है कि आजकल के बच्चे इतने आगे जा रहे हैं, ऐसे प्लेज में पार्ट ले रहे हैं, और मम्मी मेरे को छोटे छोटे वीडियोस भेजती रहती हैं बच्चों की कि वो बात कर रहे हैं, एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं अब, क्योंकि अब तो वो वाटर प्रूफ एक्सेसरी भी आ गए हैं। तो द चाइल्ड कैन टेक पार्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वेरी नॉर्मली, द चाइल्ड विल बी अ वेरी हैप्पी चाइल्ड। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स ऑल अबाउट फेथ। How sweet, Ananya, how sweet that have faith, and the time will pass on and your children will have a very very beautiful life ahead and they will appreciate your efforts. बच्चे बड़े होकर आपको सलाम करेंगे कि आपने हमें कितना सुंदर, सुखी और अच्छा जीवन दिया है. So I am so thankful. We'll just take last 2 quick questions which has come from Pallavi. लेकिन डेली रूटीन में सुबह से लेकर रात तक हमारे बच्चे जिस जिस चीज को करते हैं, जैसे सुबह उठना, एक मॉर्निंग सॉन्ग बना सकते हो जैसे सनशाइन, या आप अपने आप कुछ गाने बना सकते हो जिसमें आप थोड़ा म्यूजिक, रेट, रिदम, स्पीच, गोल्स डालो. उठना, ब्रश करवाना, बच्चे को ड्रेसअप करना, खाना खाते समय. आप देखो, आपको डेली रूटीन में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिसमें आप लैंग्वेज और स्पीच दोनों दे सकते हैं. सो यू डोंट सिर्फ आधा 30-40 मिनट्स आप बैठ के करवाने वाली कोई एक्टिविटी जैसे पजल सॉल्विंग या कुछ क्रिएटिव काम करते हुए आप लैंग्वेज दे सकते हैं. जैसे कोई क्राफ्ट की एक्टिविटी कर सकते हो क्योंकि आजकल आप घर पर हैं, तो इन चीजों में बैठ, कुछ भागने वाली, कुछ गेम्स वाली, कुछ बैठने वाली, ऐसे मिक्स एंड मैच करके आपका पूरा दिन बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है. और यस मैम, जैसे छोटे बच्चों में इम्प्लांट होता है तो वो तो एक मतलब नॉर्मली बच्चे की तरह एडजस्ट कर लेते हैं. मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आफ्टर 7 इयर्स अगर इम्प्लांट होता है तो क्या इन बच्चों में भी चांस है कि ये नॉर्मल बच्चों की तरह एडजस्ट हो जाते हैं आगे चल के? ऑफ कोर्स, बड़े होने के बाद इम्प्लांट होने पे देखो, टिपिकल हियरिंग बच्चों के लेवल में अगर हम स्पीच की बात करें तो स्पीच क्लैरिटी का इशू रहेगा, क्योंकि जो स्पीच डेवलपमेंट का टाइम है वो 0 to 2 में मैक्सिमम, 2 to 5 में भी आराम से हो जाता है. लेकिन 5 साल की उम्र के बाद जो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, वो धीरे धीरे दूसरी सेंसेस में कन्वर्ट हो जाती है. उसका विजुअल डेवलपमेंट ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है. तो कभी भी कंपेयर करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिस स्टेज से बच्चा शुरू हुआ था उस स्टेज से फिर बच्चों में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है. तो मैं ये बोलूंगी आप कंपेयर मत करो. एक नॉर्मली क्वेश्चन है, मतलब मेरी बेटी का जैसे 7 इयर्स बाद हुआ है तो उसकी एजुकेशन वगैरह आगे मतलब नॉर्मली होगी या नहीं, मेरा तो अलग कंपेयर के लिए क्वेश्चन नहीं है. हाँ, नहीं, जरूर होगी, बिल्कुल होगी. आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने बच्चे के साथ, उसके साथ जो भी पीछे का छूटा है उसको कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं. तो जहाँ से शुरू हुई थी वहां से तो वो बच्चा आगे, बहुत आगे बढ़ेगा. ओके मैम, थैंक यू. Thank you. So with this note, Ananya, we would really like to thank you for such a nice interaction with all our families. मैं अपनी सारी families की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ that you've taken out time and you were really inspiring to many of our families. We wish you good luck for a bright future. And thank you so much, Ananya.
थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू एवरीबॉडी। मेरे को बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। ये कम्युनिटी मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट लगती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सबसे ज्यादा एक दूसरे को समझ सकते हैं, क्योंकि हम सब सेम जर्नी पे हैं। तो मेरे को ये कम्युनिटी बहुत पसंद है, और कॉकलियर हमेशा मेरी फैमिली रहेगी। मैं बहुत शुरू से ही कॉकलियर इम्प्लांट के साथ बड़ी हुई हूँ, और बहुत शुरू से इसके बारे में बात करते करते इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ मी। So I'm very grateful for each and every one of you, and I wish everybody best of luck in their journeys. Everybody is very talented, everybody has a very bright future, and I hope to see everyone someday soon. So there are lots of thank yous coming up for you in your chat box. थैंक यू मैम, थैंक यू अनन्या। मैम Thank you. अनन्या का वीडियोस देख के ही हमने कॉकलियर इम्प्लांट का डिसीजन लिया, वो इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। So sweet. See, अनन्या हमेशा बोलती है कि आपको जब भी जरूरत हो मेरे को लिखे, मेरे को बात करें। So I thought probably अभी थोड़ा हम सब लोग घर पर हैं, हर बार मैं एक सेशन देती हूँ जिसमें कुछ कुछ सिखाने का होता है। मैंने कहा हर बार बहुत बोरिंग हो जाता है, इस बार कुछ डिफरेंट करना चाहिए। इसीलिए आई थॉट इट्स अ गुड टाइम कि हम सब जो घर में उदास हैं थोड़ा सा चेयर अप हो जाएंगे कि हैव फेथ, have hope. Your children will have a beautiful life. और बहुत अच्छा करेंगे सब बच्चे, और एक दिन आप भी इसी कम्युनिटी को, इसी सोसाइटी को हेल्प करेंगे। आज आपको मिल रहा है, भगवान आपको उस स्टेज पे लाए जहां आप सब और नए आने वाले पेरेंट्स की हेल्प करें। We are all a part of this society, and together we can make a beautiful world. So I'll see you next month with something more interesting and with more new information. So see you all and have a lovely weekend today. Thank you. Bye, ma'am. Bye, Ananya. Thank you so much, Thank ma'am. you so much. Bye, bye, bye. Bye.